So when can we expect the supplementary list? Sir, already 15 lakh have been disposed from the adjudication list. When can we expect the supplementary list? नीरज सर, नीरज हूँ न्यूज 18 इंडिया से। हमारा सवाल यह है कि मैं उसी को आगे सवाल बढ़ा रहा हूँ जो महाभियोग को लेकर नोटिस दिया गया है संसद में, और ऐसे वक्त में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की घोषणा भी हो रही है। बंगाल में टीएमसी की तरफ से सवाल ज्यादा खड़े किए गए हाल के दिनों में, तो ऐसे तमाम विपक्षी दल जिन्होंने नोटिस दिया है उनके लिए आपका क्या मैसेज है? क्योंकि चुनाव की प्रक्रिया में आप खुद कहते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे, तो विपक्ष के लोगों को क्या कहेंगे? सर, मैं अश्विन कुमार सिंह, एनडीटीवी से। सर, आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने से कुछ देर पहले बंगाल की सरकार ने 500 रुपए का मानदेय बढ़ाया पुजारियों और मुआजिनों के लिए, और साथ ही डीए भी बढ़ाया गया है। तो क्या ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो एक तरीके से आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के 30 मिनट पहले किया गया, तो क्या कमीशन इस पर कुछ विचार करेगा? First of all, I'd like to make clear that the model code of conduct is applicable from now onwards. So actions taken prior to model code of conduct is the prerogative of the concerned government. But now onwards, the model code of conduct shall be applicable. With regards to the West Bengal elections to be held in 2 phases instead of 8 phases earlier, the Commission has held detailed deliberations, and in its considered opinion, it was found necessary to reduce the number of phases and bring it down to an extent where it is convenient for everybody. With regards to the police officers who were involved in the violence in earlier elections, the list has been sort of, as is known to the media during our visit to the West Bengal, and necessary action as per law shall be taken. With regards to the supplementary list, as per the orders of the Honorable Supreme Court, the learned judges working under the directions of the Honorable High Court of Calcutta would be bringing out this supplementary list. And as and when the supplementary list, the names are coming out, they shall be included in addition to the existing electors. With regards to some other questions, I would like to make it clear that elections in all these 4 states and the Union Territory of Puducherry shall be violence-free and inducement-free. Commission will take strict action if anything to the contrary is noticed or reported. 39, 42. हाय सर। 56 पीछे दीजिए। 56 सर, मनोहर केसरी, न्यूज एक्स और इंडिया न्यूज से सर। सर, लगातार आरोप लगते रहे, चाहे एसआईआर को लेकर के भी ममता बनर्जी भी लगातार प्रोटेस्ट भी बैठी रही, और ये कहा जा रहा है कि एसआईआर जो हुआ है उन लोगों का नाम हटा दिए हैं जहां टीएमसी के ज्यादा वोटर्स थे। तो किस तरह से ट्रस्ट आप लोग डेवलप कर पाएंगे, क्योंकि लगातार इस तरह से अपोजिशन की ओर से आरोप लगाए जा रहे हैं। और दूसरा है कि चुनाव आयोग को कहा जा रहा है टीएमसी की ओर से कि संवैधानिकता का पालन नहीं किया जा रहा है, असंवैधानिक है, और जब मीटिंग में जाते हैं हमारे साथ व्यवहार अच्छा नहीं होता है। क्या कहेंगे? Sir, Venkataraman from Dinamala from Tamil Nadu. So now the trend has come that before the election date announcement, the government's offering money. The Bihar before assembly election 10,000 rupees was offered to the voters. Now, followed by Tamil Nadu has announced 5,000 rupees. Does the election commission has any plan to
prevent this kind of activities, number one. Due to freebies, most of the state government become a bankruptcy. Whether Election Commission got to know the facts that what kind of action is going to be taken by the Election Commission of India. 3, during TN session time. Sir, please restrict yourself to one question. Please, sir. Only the last We'll go on question. to the During next the question, sir. TN session time, the Election Commission was considered to be one of the best commission. Now, when are we going to see the same kind of opinion from the public? सर गौरव श्रीवास्तव सर इधर 42. सर गौरव श्रीवास्तव टाइम्स नाउ भारत से Gaurav ji, I am coming to you. Just ओके सर प्रशांत देव सर न्यूज़ 24 से मेरा सवाल एक ही सवाल है दो तरीके का कि आपने पश्चिम बंगाल में खास करके समीक्षा बैठक की है सभी पार्टियों से मिलकर के कानून व्यवस्था आपको क्या फीडबैक मिला कि कितनी स्थिति वहां पे अच्छी है खराब है दूसरा कि अब अनाउंसमेंट करने के बाद आप कितने मुतमईन हैं कि आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएंगे पश्चिम बंगाल में क्या मैकेनिज्म आपने डेवलप किया है उसके लिए Gaurav ji. सर गौरव टाइम्स नाउ भारत से इधर सर सवाल ये है कि पहली बार एसआईआर की प्रक्रिया जो कि 16 केंद्रीय चुनाव आयोग के क्षेत्राधिकार में उसमें अदालतों की भूमिका लोगों की मतदाता पात्रता को तय करने के लिए ली गई क्या आने वाले राज्य जहां पर एसआईआर होना है और जहां पर पेंडेंसी बाकी रहेगी क्या इसी तरह का एक जो कस्टम है वो शुरू होगा या एक इसे किस तरह से आप देखते हैं दूसरा सवाल सर ये है कि पश्चिम बंगाल को लेकर जब आपने बैठक की थी तो ये जानकारी आई कि राजनीतिक हिंसा को लेकर जो है खासतौर पर लगाम लगाई जाएगी क्या कुछ आइडेंटिफाई हो सका है कि किन राजनीतिक दलों की तरफ से सबसे ज्यादा राजनीतिक हिंसा का इतिहास रहा है और सबसे ज्यादा दिक्कतें रही हैं उसको लेकर क्या एक्शन लिया जाएगा 80. संजय शर्मा हूं आज तक से मेरा सवाल भी गौरव के सवाल को आगे बढ़ाने वाला है कि पश्चिम बंगाल में पिछली बार 8 चरणों में चुनाव हुए लेकिन हिंसा मुक्त रहे अधिकतर इस बार 2 चरणों में हो रहे हैं लेकिन वहां बड़ी समस्या चुनावी हिंसा से ज्यादा चुनाव के बाद की हिंसा है उससे निपटने के लिए कोई खास इंतजाम या फिर उसे उसमें कैसे करेंगे Sir. भारत के संविधान का अनुच्छेद तो 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं जिसकी तारीख का आज ऐलान हुआ है आगे बढ़ते